Hello everyone, I hope आप सब लोग ठीक होंगे. Welcome to another video lecture in which we will be continuing from the previous lecture. Um, in the last lecture, as you know, we have discussed about not-for-profit organizations and VFM. That was very important section. Okay. Aj, it's a very small lecture today. We are just going to discuss two things that are important in order to proceed with the business and technology subject. The very first thing that we will be discussing is NGOs. I can write it like this: NGOs. Okay. What are NGOs? Let's just quickly revise it. NGOs are non-governmental organizations. Okay, it stands for non-governmental organizations. Whenever the word non-governmental has arisen here, this means that in companies का या sorry in organizations का government के साथ कोई relation नहीं होता. They are independent of the government. NGOs are also not-for-profit organizations. Not-for-profit organization government based भी हो सकती हैं, private based भी हो सकती हैं. NGOs are also a type of NFPOs. Okay, बट ये नॉन गवर्नमेंट होती हैं. इनका गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होती हैं. गवर्नमेंट है, इनसे गवर्नमेंट का कोई रिलेशन नहीं होता. दे ऑल्सो वर्क फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन. नाउ रिमेंबर दैट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नहीं होती. एनजीओज आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल हो सकती हैं. ओके, वर्क फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल कॉज. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बी वेल अवेयर, आजकल जो है एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट बहुत ज्यादा हैं, राइट? So what they do, they form an organization that is independent of the government, and they rescue, street animals like street cats, street dogs, like this kind of thing. Okay, वो social या political work में ज़्यादा involve होते हैं. NGOs का आपने सिर्फ यही याद रखना है कि it's a non-governmental organization and it work for social and political cause. ओके. फिर इसके अलावा आपने ये याद रखना है, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दे दूं, तो अगर आप देखें यूके में, आई रिमेम्बर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि टू ओवरऑल overlook and to overall collect the funds for natural causes, right? Sorry, for the nature causes, right? जिसमें आपकी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन आ गई है, जिसमें आपकी अब इस तरीके की चीजें आ जाती हैं. द रेड क्रॉस, ये अगेन एक यूके बेस्ड एनजीओ है. ठीक है. एमनेस्टी इंटरनेशनल. दीज आर थ्री नेम्स दैट आई रिमेम्बर्ड फॉर द एनजीओs. So let me write here the Red Cross. You can also dig in detail about these things. Okay, Amnesty International. So these are all the types of NGOs. Okay, you can also search for NGOs in Pakistan. So ये वो company, वो organizations होती हैं जो social political work cause के लिए काम कर रही होती हैं, and ये government से बिल्कुल separate होती है. अब इनको funding कहाँ से मिलती है? इनको funding जो है इनके trustees ला कर देते हैं. Okay, फंडिंग अगर मैं बात करूं इनकी, कि इनकी फंडिंग जो है वो इनको ट्रस्टीज कौन होते हैं? जब एक कंपनी, जब एक ऑर्गेनाइजेशन को जो लोग फंड्स देते हैं वो इसके बोर्ड में हिस्सा बन जाते हैं, एंड दे बिकम ट्रस्टीज. ओके. फिर इनको डिफरेंट डोनेशंस आती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. फिर इसके अलावा अब फॉर एग्जांपल देखें, पाकिस्तान में डिफरेंट है ऑर्गेनाइजेशन, लाइक ईदी फाउंडेशन है. अब ईदी फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ एनजीओ, राइट? एंड इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. वो नॉट फॉर प्रॉफिट भी है, वो एनजीओ भी है. Okay, it's not related to government, it's a private organization. Okay, so ED Foundation in Pakistan, it's how it's getting a funding. तो उसको सबसे पहले तो गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती हैं, गवर्नमेंट भी इनको पैसे देती है, इनको डिफरेंट इंटरनेशनल डोनेशंस मिलती हैं, लोग इनको पर्सनली पैसे देते हैं. ठीक है, ठीक है. तो इन तमाम चीजों पर वो काम करते हैं. तो दीज आर एनजीओ. इससे ज्यादा यू डू नॉट नीड टू dig in a lot deeper for this. इसमें just a brief introduction है आपके कोर्स में. Then जो last part है इस video lecture का, that is cooperatives. Cooperatives is a bit of confusing for different students. I have seen this thing. So cooperative, it's basically group of people or members that are related in terms of profession or working sector.
ओके। सो कोऑपरेटिव बेसिकली प्राइवेट इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं, 10, 20, 30, इन तमाम लोगों का ग्रुप होगा। और वो ग्रुप लोग क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो तमाम लोग जो है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक स्पेसिफिक जगह काम करते हैं, या फिर वो प्रोफेशन उनका सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो डॉक्टर्स होते हैं, दे फॉर्म अ कोऑपरेटिव, डॉक्टर्स कोऑपरेटिव। तो होगा क्या कि फॉर इंस्टेंस अगर कल को गवर्नमेंट जो है कोई ऐसा लॉ पास कर दे जिससे डॉक्टर्स की सैलरीज अफेक्ट हो, या डॉक्टर्स पर टैक्स इंक्रीज हो जाए, या डॉक्टर के कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्स कर दे, तो दिस डॉक्टर कोऑपरेटिव इज गोइंग टू रेज वॉइस अगेंस्ट दिस थिंग। ठीक है। Specifically, you guys know that there is a private trader organization, private trader cooperative in Pakistan. Now what happens for the private trader cooperative कि जब भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर पर कोई टैक्स लगाती है, स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस लगाती है, ड्यूटी टैक्सेस लगाती है, या फिर लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस लगाएगी या रिड्यूस करेगी, तो ये जो प्राइवेट ट्रेडर एसोसिएशन है, कोऑपरेटिव जो है, दे आर गोइंग टू रेज द वॉइस। ठीक है। फिर इसी तरीके से देयर इज अ फार्मर कोऑपरेटिव। नाउ व्हाट फार्मर कोऑपरेटिव गोइंग टू डू? फार्मर कोऑपरेटिव जो है वो किसानों के बारे में आवाज उठाएगी, राइट? कि अगर गवर्नमेंट जो है, या अगर अब कोई भी इस तरीके की चीज हो जाती है जो फार्मर्स के लिए सुटेबल नहीं है, तो वो फार्मर्स के जो है वो हक में आवाज उठाएगी, राइट? सो कोऑपरेटिव्स होता क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कंबाइन होकर एक एसोसिएशन, एक कोऑपरेटिव, एक ग्रुप बना लेते हैं, और वो ग्रुप उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहा होता है। एवरी मेंबर इन कोऑपरेटिव वर्क्स एंड cooperative are based on democracy, on democratic decisions. ओके। तो याद रखिएगा, जो आपके कोऑपरेटिव्स हैं वो डेमोक्रेटिक डिसीजंस पर बेस्ड होते हैं। व्हाट डज डेमोक्रेटिक डिसीजंस मींस? डेमोक्रेटिक डिसीजंस का मतलब ये होता है कि हर बंदा कोऑपरेटिव में हैज अ वोट, दे हैव अ वॉइस, ओके, एंड एनीवन इन द कोऑपरेटिव कैन रेज कंसर्न। इसमें ऐसा नहीं होता कि देयर इज अ सीनियर और जूनियर काइंड ऑफ थिंग। नो, एवरीवन इज इक्वल, ओके, एंड दे बेसिकली डू जॉइंट एफर्ट्स, ओके। हर बंदा जॉइंट एफर्ट करता है, और अगर उन्हें प्रॉफिट हो जाए, कोऑपरेटिव्स के फंड्स वगैरह होते हैं, दे रेज फंड्स टू डिफरेंट एक्टिविटीज, ओके। तो उनके जो फंड्स होते हैं, तो उनसे जो भी उनको प्रॉफिट मिलता है, वो प्रॉफिट उनमें डिवाइड भी कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फार्मिंग कोऑपरेटिव है, और वो फार्मिंग कोऑपरेटिव जो है वो कमर्शियल प्रॉफिट इन जो है वो लेकर आ रही है, तो फिर वो जो प्रॉफिट रेज होगा वो वापस उन्हीं फार्मर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, ओके। So you guys need to understand कि एक a small cooperative organization is likely to be managed democratically, okay, with significant decisions taken by all the member together. ठीक है। फिर इसके अलावा जो छोटे कोऑपरेटिव्स होते हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं। बड़े कोऑपरेटिव्स ऑब्वियसली फिर उनमें यू कैन से के सेक्शंस बन जाते हैं। सो दिस वाज व्हाट एनजीओस सॉरी एंड कोऑपरेटिव्स आर। व्हाट यू नीड टू ओनली रिमेंबर इज एनजीओस नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, दे वर्क फॉर सोशल पॉलिटिकल कॉज, एंड उनको फंडिंग जो है वो ट्रस्टीज, डोनेशंस एंड प्राइवेट लोगों से आती है। What are cooperatives? These are the group of people that are related somehow either through profession or work sectors, okay, and her member in a cooperative has a democratic vote. They work on daily basis, and if the cooperative is commercial, so वहां पर profit distribute कर दिया जाएगा। Okay, so this was all for this video lecture, and here within your Kaplan books and within your study hub, your first section of your business and technology is completed. Now, afterwards from this, we will be moving towards the second section of your subject, business and technology. Until then, take care, guys. Have a good day. Bye.